Hello friends, welcome to all. Myself Vishal Jogidas. Today we will discuss about chapter number 5, transistor biasing and stabilization of operating point. And this is the lecture number 5 of this chapter. So now we will start. Our today's topic is faithful amplification. So first of all, we have to define this faithful amplification. So let us now come to another concept of using transistor in amplification. It is the concept of the faithful amplification. Here we regard to that amplification process in which produces the distortion free output signal. એટલે કે આપણે શું જોવાનું છે, ફેથફુલ એમ્પ્લિફિકેશન કોને કહેવાય કે એમાં કોઈ પણ જાતનું ડિસ્ટોર્શન આવવું જોઈએ નહીં. એટલે આઉટપુટ કેવું હોવું જોઈએ, ડિસ્ટોર્શન ફ્રી હોવું જોઈએ. એટલે એની ડેફિનેશન શું થશે? ધ આઉટપુટ સિગ્નલ ઇઝ ઇન ધ પરફેક્ટ પ્રોપોર્શનલ ટુ ધ ઇનપુટ સિગ્નલ વિથ एम्प्लीफिकेशन. दिस इज कॉल्ड द फेथफुल एम्प्लीफिकेशन. यानी कि इनपुट सिग्नल जैसा भी है वैसा ही सेम सिग्नल हमें आउटपुट में मिलना चाहिए विदाउट एनी डिस्टॉर्शन. इसे बोलते हैं फेथफुल एम्प्लीफिकेशन. तो ये डेफिनेशन जो है वो 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं. ठीक है. नाउ ट्रांजिस्टर बायसिंग. So what is biasing? If we employ the C configuration, then apart from just keeping the forward bias between base emitter junction and reverse bias between base collector junction, there are still some essential factors which are needed to be considered for achieving distortion free good amplification of the signal. These factors are listed as below. See, हम लोगों ने पहले भी देखा था कि ट्रांजिस्टर से उसका जो भी ये करना है हमें यूज़, तो हम क्या करेंगे, तो उसको यूज़ करने के लिए कुछ कंडीशंस है, वो भी हम जानते हैं कि भाई बेस एमीटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए और रिवर्स बायस बेस कलेक्टर जंक्शन. ये 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए. लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए. वो क्या है हम लोग देखते हैं. वन इज प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट. Okay, then minimum proper base emitter voltage at any instant of signal processing, and third one is minimum proper collector emitter voltage at any instant of signal processing. तो ये 3 कंडीशन है, ये फुलफिल होनी चाहिए और इसको बोलते हैं बायसिंग. ठीक है. हम लोग देखते हैं आगे कैसे ये होता है. We shall first see what happens if there is no proper zero signal collector current in the circuit. जो पहला जो केस हमने बोला कि प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होना चाहिए और ये नहीं है तो क्या होगा. टेक द एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इन विच द ओनली बैटरी VCC इज अटैच्ड. तो આપણે એક એક્ઝામ્પલ લેવાનું છે કે એમાં શું કરવાનું છે કે જસ્ટ VCC બેટરી એક જ એટેચ કરેલી હશે તો શું બનશે. નાઉ ડ્યુરિંગ ધ પોઝિટિવ સાયકલ ઓફ ધ ઇનપુટ સિગ્નલ ધ બેઝ એમિટર જંક્શન વિલ બી પ્રોપરલી ફોરવર્ડ બાયસ્ડ and so the output amplified signal will take place as shown in the first figure. Here we will see figure. Okay, here we can see the base
एमीटर बेस्ड जंक्शन डज नॉट हैव फॉरवर्ड बायसिंग ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। यहाँ पे देखिए ये इनपुट सिग्नल है, यहाँ पे जो ऊपर की साइड है इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल और नीचे की साइड ये है इसको बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल को कंप्लीट करेंगे तो एक पूरा हमें एक साइकिल मिलेगा इनपुट का। अब यहाँ पे देखिए ये इनपुट है और ये आउटपुट। आउटपुट में हमें ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल रही है, नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है? तो हमने जो पहले पॉइंट की बात की वही इसका रीज़न है, नो प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। ओके, but during the negative cycle of the input signal no voltage will be there which to make the base emitter junction to forward bias. Consequently there will be no signal in the output during the negative cycle of the input signal. यानी कि अगर प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट नहीं है सर्किट में तो क्या होगा, हमें नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो हमें आउटपुट में नहीं मिलेगी, तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं हो पाएगा ना। हमने फेथफुल एम्पलीफिकेशन की बात की थी, उसमें क्या किया था कि जैसा भी इनपुट सिग्नल हो वैसा ही सेम टू सेम आउटपुट में सिग्नल मिलना चाहिए। उसका एम्पलीट्यूड अलग होगा, वो एम्पलीफाई हो जाएगा, लेकिन उसका शेप जो है वो सेम टू सेम होना चाहिए। तो वही उसको हम लोग प्रॉपर और फेथफुल एम्पलीफिकेशन बोलेंगे। तो इसमें ये अगर फर्स्ट पॉइंट फुलफिल नहीं हो रहा है तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोई हमें वोल्टेज नहीं था। ठीक है, अब दूसरा केस में हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे हमें VBB ऐड कर दिया है। तो उसका रीज़न क्या होगा, विथ इंट्रोडक्शन ऑफ VBB यानी कि बेस एमीटर जंक्शन डज हैव फॉरवर्ड बायसिंग ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल, सो इन आउटपुट द नेगेटिव सिग्नल डज नॉट कट ऑफ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो सिग्नल हमें आउटपुट में मिला है वो प्रॉपर सिग्नल मिला है, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल भी है, नेगेटिव हाफ साइकिल भी मिल गई है। तो यहाँ पे हमने ये वोल्टेज इंट्रोड्यूस किया, इसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉपर हुआ एम्पलीफिकेशन। ठीक है, बट वी हैव टू हैव द एम्पलीफिकेशन ऑफ द टोटल सिग्नल। For that purpose, the forward biasing of the base emitter junction is required during the negative cycle. ये हमने देखा कि कैसे हमने बेस एमीटर वोल्टेज ऐड किया। ठीक है, ऑल्सो सो दैट द कलेक्टर करंट डज नॉट कट ऑफ ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, ये हमने फिगर में भी देखा। इन अदर वर्ड्स वी रिक्वायर फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ emitter based junction whether or not the signal is applied. So this is the condition, अगर सिग्नल अप्लाई नहीं भी किया है फिर भी एमीटर बेस्ड जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अगर ये हम रखेंगे तो हमारा आउटपुट जो है वो प्रॉपर मिलेगा, यानी कि दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो हमें आउटपुट में मिलेगी, यानी कि फेथफुल एम्पलीफिकेशन होगा। Now we have included another battery VBB for this purpose in the second figure, ये भी हमने देखा है। ठीक है, which always keeps the emitter based junction forward biased and proper zero signal collector current is maintained in the circuit। यानी कि अगर VBB को हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखेगा और प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट भी देगा, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। द मिनिमम प्रॉपर बेस एमीटर वोल्टेज वुड बी दस मेंटेन एट एनी इंस्टेंट, यानी कि जैसे ही हम लोग VBB को इंट्रोड्यूस करेंगे सर्किट में रखेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी।
ओके। सो वीबीबी जो है वो मेंटेन होगा कोई भी इंस्टेंट पे, यानी कि नेगेटिव अप साइकिल में भी ये मेंटेन होगा। VB should not fall below 0.5 volt in the case of germanium transistors and 0.7 volt in the case of silicon transistor। यानी कि बेज एमीटर वोल्टेज जो है वो जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए 0.5 से कम नहीं होना चाहिए एंड सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए 0.7 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये क्राइटेरिया है। द थर्ड क्राइटेरिया इज द मिनिमम प्रॉपर एमीटर कलेक्टर वोल्टेज, यानी कि मिनिमम VCE। This voltage should not fall below 0.5 volt in case of germanium and 1 volt in case of silicon transistor। यानी कि मिनिमम एमीटर कलेक्टर और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज जो है वो जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए मिनिमम 0.5 रहना चाहिए और सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए मिनिमम 1 वोल्ट होना चाहिए। सो दिस आर कॉल्ड नी वोल्टेज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नी वोल्टेज बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सब कंडीशंस होती है, इसको फुलफिल होना पड़ता है। The fulfillment of the above given three conditions is known as transistor biasing। तो ट्रांजिस्टर बायसिंग है क्या? The fulfillment of the above given three conditions is known as ट्रांजिस्टर बायसिंग। जो हमने तीनों कंडीशन के बारे में बात की वो अगर फुलफिल हो गई यानी कि ट्रांजिस्टर का बायसिंग हो गया कंप्लीट। This can be achieved either by biasing the battery as shown in the second figure। It means in the second figure we have included one more battery, that is VBB। एक तो ये तरीके से हो सकता है, ये इसका ये बायसिंग। ठीक है, दूसरा क्या कौन सा तरीका है? बाय एसोसिएटिंग ए स्पेसिफिक सर्किट विथ द ट्रांजिस्टर विच बायस द वोल्टेज ऑफ ए सिंगल बैटरी टू फुलफिल द अबव थ्री क्राइटेरिया। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक सर्किट ऐड करनी पड़ेगी ट्रांजिस्टर के साथ। ओके, और उसमें सिंगल बैटरी होगी और वो फुलफिल करेंगी ये तीनों क्राइटेरिया, तो हो सकता है। ठीक है, जनरली द एक्स्ट्रा बैटरी इज नॉट इंक्लूडेड बट वी एसोसिएट ए स्पेसिफिक सर्किट एज सेड अबव। तो जनरली क्या होता है कि एक्स्ट्रा बैटरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती बट एक्स्ट्रा सर्किट हम लोग ऐड करते हैं। डिजाइनिंग सच ए सर्किट इज़ व्हाट नोन एज ट्रांजिस्टर बायसिंग। ओके, तो इस तरह की सर्किट को डिजाइनिंग करते हैं उसे बोलते हैं ट्रांजिस्टर बायसिंग। नाउ इनहेरेंट वेरिएशन ऑफ द ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स, यानी कि ट्रांजिस्टर पैरामीटर में इंटरनल कौन कौन से वेरिएशन होते हैं उसके बारे में हमें बात करनी है। सो वी नो दैट ट्रांजिस्टर्स वर्किंग इज डिनोटेड बाय सम पैरामीटर्स सच एज बीटा, VB, etc. So in previous lectures we have already seen the transistors working, okay, and it is depends on some parameters. Some parameters are external parameters and some parameters are inherent or internal parameters. So this beta and VB, these are called the inherent parameters of the transistor, but these parameters are not the same for each and every transistors इवन इफ द टाइप इज़ सेम। यानी कि ये जो हमने बीटा की बात की है ये क्या है, इसका वैल्यू अगर सेम टू सेम ट्रांजिस्टर, सेम कंपनी का सेम टू सेम ट्रांजिस्टर है तो भी ये दो ट्रांजिस्टर का वेरिएशन होगा उसमें बीटा में। ठीक है, यानी कि ये हो ही नहीं सकता, एग्जैक्ट सेम टू सेम हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से ये बीटा की वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज रहती है, उसे बोलते हैं इनहेरेंट वेरिएशन।
For example, we take transistors of type BC147. The values of beta varies from 100 to 600 फ्रॉम ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर। यानी कि अगर हम मान लेते हैं एक ट्रांजिस्टर ले लेते हैं, BC147 इज वन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इस ट्रांजिस्टर में बीटा की जो वैल्यू है वो 100 से लेके 600 तक हो सकती है। अगर हम लोग डिफरेंट ट्रांजिस्टर लेंगे BC147 और सभी का अगर बीटा मेज़र करेंगे तो क्या होगा, सभी का डिफरेंट होगा, किसी का 100 होगा, किसी का 150 होगा, तो ये कभी सेम नहीं हो सकता। एंड as these values change transistor to transistor, the working of transistor in given circuit will also change, resulting in change in the operating point। तो ये इनहेरेंट पैरामीटर की वजह से क्या होता है, वर्किंग के ऊपर इफेक्ट रहता है, क्योंकि ये बीटा की वैल्यू चेंज हो जाती है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो ऑपरेटिंग पॉइंट की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। हम लोगों ने देखा था कि ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर है ट्रांजिस्टर के लिए, ठीक है। और उसकी पोजीशन अगर चेंज हो जाती है यानी कि ये प्रॉब्लम होता है इसमें, तो ये इनहेरेंट वेरिएशन होता है। सो इट मे रिजल्ट इन डिस्टॉर्टेड और क्लिप्ड एम्प्लीफिकेशन। हम लोगों ने देखा कि एक एग्जांपल लिया था, उसमें क्या होता था कि पॉजिटिव हाफ साइकिल का एम्प्लीफिकेशन होता था, नेगेटिव हाफ साइकिल क्लिप हो जाती थी, उसे बोलते हैं क्लिप्ड एम्प्लीफिकेशन। या फिर डिस्टॉर्टेड, यानी कि जो वेवफॉर्म जो है, इनपुट हमें जो भी सिग्नल दिया है वो उसके जैसा शेप नहीं रहता और इसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है, तो ये रिजल्ट होता है इनहेरेंट वेरिएशन की वजह से। So when we are designing a biasing circuit, we should take care of this variation in inherent parameters. And the biasing circuit should be such to incorporate these changes and make the transistor amplification independent from such variation. तो जब भी हम लोग ये बायसिंग सर्किट की डिज़ाइन करेंगे तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये इसमें इतना वेरिएशन होता है, तो उसका फुलफ़िल करने के लिए भी हमें इसकी डिज़ाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ट्रांजिस्टर एम्प्लीफिकेशन जो है वो इंडिपेंडेंट रखेंगे ऐसे वेरिएशंस के, यानी कि ये इनहेरेंट वेरिएशंस की वजह से ट्रांजिस्टर के परफॉर्मेंस के ऊपर या और एम्पलीफायर के परफॉर्मेंस के ऊपर कोई असर नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं। थैंक यू।